نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے متعلق ایک اہم کورس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خلاصۃ القرآن کورس بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے۔ ابتدا میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، رب کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی دولت عطا فرمائی، آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ نے مال عطا فرمایا، آپ نے قربانی کی، زکوٰۃ دی، حج کیا۔ جو بھی نیک عمل ہو، نیک عمل کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ نمبر 2، جب بھی کسی نیک کام کو شروع کریں تو اس میں چند دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ نمبر 1، اے اللہ، اس کام کو جو میں کر رہا ہوں اسے خیر و برکت کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا، اسے خیر و سہولت کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچا۔ نمبر 2، اس میں پیدا ہونے والی یا مجھے پیش آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ نمبر 3، اس سے فائدہ مجھے بھی عطا فرما اور اس کا فائدہ پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ بنیادی طور پر ان 3 دعاؤں کا حد سے زیادہ اہتمام کریں۔ تیسری بات اور یہ اہم بات ہے کہ جب کوئی بھی کام شروع کریں اس کام کے شروع میں انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، ہم نے اپنے کام کی ابتدا آپ کی خدمت میں اپنے ماتھے کو ٹیک کر کی ہے، آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں عبادت کر کے کی ہے۔ یا اللہ، اس کی برکت سے ہمارے کام کو نظر بد سے بھی محفوظ فرما اور اس کو خیر و سہولت کے ساتھ مکمل فرما۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن 3 بنیادی چیزوں میں ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ ان 3 چیزوں کو ہمیں سر انجام دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی ہے کہ نیکی کی توفیق ملنے پر خدا تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں۔ نمبر 2، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور نمبر 3، اس نیک کام کو شروع کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ چوتھی بات میں جو وضاحت عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہم قرآن کریم کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم ہمیں کیا نصیحت فرماتا ہے؟ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں جینے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں ضروری جنہیں کرنا ہے،
کون کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ جو خلاصۃ القرآن کورس کے نام سے کورس شروع کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو ہم پرکھیں۔ تو اس پر بہت زیادہ توجہ کی جائے۔ ہم کوشش کریں گے ایک دن میں 2 پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کریم کے ایک اقتا کو کھولنے کے لیے، کسی آیت کی تشریح کے لیے وقت بہت زیادہ درکار ہے، لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، اس لیے ہم کوشش کر کے ایک دن میں 2 پاروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ سرسری طور پر پورے کے پورے قرآن میں ہماری نظر گزر جائے کہ ہمیں قرآن کریم نے کیا درس دیا ہے اور ہم سے قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے 5ویں بات میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کا روزانہ کی بنیاد پر 2 پاروں کا خلاصہ ہوگا، اور خلاصے کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے ان 2 پاروں میں ہمارے لیے نصیحتیں کیا ہیں، یعنی قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ان میں ہمارے لیے روشن راہیں کیا ہیں، ان روشن راہوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں قرآن کریم کے خلاصے کی طرف۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 1 کا نام الف لام میم ہے۔ الف لام میم، الف لام میم پارہ، اور اس کے بعد دوسرا پارہ ہے سیقول۔ ان 2 پاروں کے نام ہیں الف لام میم اور سیقول۔ پارہ نمبر 1 میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ اس میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور لمبی سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ تو پہلے پارے میں بھی سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ ہے، دوسرا مکمل، اور تیسرے کا کچھ حصہ وہ بھی سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 30 پارے اور سورۃ الفاتحہ ان کا مجموعہ قرآن کریم ہے۔ سورۃ الفاتحہ، لفظ فاتحہ یہ فتح سے ہے۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں فوج نے فلاں ملک کو فتح کر لیا، بمعنی اس میں جانے کے لیے انہوں نے راستہ کھول لیا، تو فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی ابتدا ہے، قرآن کریم سٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، قرآن کریم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یعنی ہم اگر یوں بیان کرنا چاہیں کہ قرآن کریم میں جتنے مضامین آئے ہیں، ان تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 اہم مضامین کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں ان کو کیا جائے، جو چیزیں منع کی ہے ان سے رکا جائے، نمبر 5 ماننے والے لوگ، اور نمبر 6 نہ ماننے والے لوگ۔ ماننے والے لوگ اور نہ ماننے والے لوگ، یہ کل 6 چیزیں ہیں جو پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ 6 کی 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جو تمام जहानों का पालने वाला है, रहमान है और रहीम है। अल्लाह ताला ने सूरत मुबारका में इब्तिदा में इन दो आयात में अपनी तौहीद को बयान फरमाया है, यानी अल्लाह तबारक व ताला एक जात है। आगे मालिक यौमिद्दीन, इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत को बयान फरमाया है। मालिक यौमिद्दीन में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को बयान फरमाया है, जो उन 6 मज़ामीन में से एक अहम मज़मून है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला ने इसमें अहकामात को बयान फरमाया है। हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मांगते हैं। इबादत वो करेगा जो अल्लाह ताला का हुक्म माने, अल्लाह से मांगेगा वो जो अल्लाह ताला का हुक्म माने। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इसमें इरशाद फरमाया कि उन लोगों का हमें रास्ता दिखा ए अल्लाह जिन पर आपने इनाम किया है। जिन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है वो 4 किस्म के लोग हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। 4 किस्म के गुरोह हैं, 4 किस्म के तबके हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। वो कुरान करीम की इसी आयत में जो मैंने तिलावत की है, अंबिया हैं, सिद्दीकीन और सच्चे लोग हैं, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले लोग हैं, और नेक और साले अफराद हैं। तो सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम में इन लोगों का तज़किरा है, यानी रिसालत का और रिसालत के मानने वालों का। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया उन लोगों का जो ना मानने वाले हैं। तो देखें, पूरे कुरान करीम में इन 6 मज़ामीन को बयान किया गया, तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकाम, मानने वाले लोग और ना मानने वाले लोग। और कुरान करीम की इस पहली सूरत में इन 7 आयात में इन 6 मज़ामीन को अल्लाह ने जिक्र किया। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि सूरतुल फातिहा पूरे कुरान करीम का जुज़ है, पूरे कुरान करीम का खुलासा है। यहां एक बात और भी समझ ली जाए, अल्लाह ताला ने 2 चीजें मजीद इरशाद फरमाई हैं, इनाम याफ्ता लोग और गुमराह किस्म के लोग। इनाम याफ्ता लोगों को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि आपने जब दुआ मांगनी है तो यूं मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया, यानी जिनको आपने अच्छी जज़ा दी है, और वो 4 किस्म के लोग हैं। आगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता मत दिखाइए कि जो आपके गज़ब का मुस्तहिक ठहरे और जो लोग गुमराह हुए। जो लोग अल्लाह ताला के गज़ब और अल्लाह ताला के गुस्से के मुस्तहिक ठहरे और जो लोग गुमराह हुए, वो यहूदी और ईसाई हैं। गोया यहूदी और ईसाई कहकर हमें यह बात समझाई है कि यहूद से मुराद एक तो यहूदी तबका है और दूसरा वो लोग मुराद हैं जिनके पास इल्म तो होता है लेकिन इल्म होने के बावजूद वो लोग जाहिलों वाले काम करते हैं। ये गुमराह तबका है, इन पर अल्लाह ताला का गजब है। और दूसरा तबका ईसाई लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन पर के पास आम तौर पर इल्म नहीं होता, इनको जाहिल कहते हैं, तो ये लोग गुमराह हो जाते हैं। तो 2 किस्म के अफराद हैं जिनका अल्लाह ताला ने यहां पर जिक्र फरमाया है। तो सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने नंबर 1 तो पूरे कुरान करीम का खुलासा पेश किया, और नंबर 2
इनाम याफ्ता लोगों का भी जिक्र किया और गुमराह और मग़ज़ूब तबके का जिक्र किया, यानी जिन पर अल्लाह ताला ने गज़ब फरमाया है। सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा ये कुरान करीम की दूसरी सूरत है। ये सूरत मदनी है। इसका अक्सर हिस्सा हिजरत मदीना के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुआ। मुसलमान जब मदीना पहुंच चुके तो इस सूरत को अल्लाह ताला ने नाजिल करना शुरू फरमाया, क्योंकि इसमें अहकामात का जिक्र है, इसमें अहकामात का जिक्र है और कोई भी कौम अहकामात के बगैर वो जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए इसका तज़किरा वहां पर फरमाया गया। सूरतुल बकरा अरबी जुबान में बकरा गाय को कहते हैं। इस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला ने गाय का जिक्र किया है, गाय का किस्सा बयान फरमाया है, इसलिए इस पूरी की पूरी सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। और ये कुरान करीम का एक खासा है कि कुरान करीम की किसी सूरत में जब मुख्तलिफ वाक़यात जिक्र किए जाते हैं तो किसी एक वाक़या की मुनासबत से अल्लाह ताला उस लफ्ज को इस सूरत का नाम करार देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मनकूल है। तो सूरतुल बकरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें गाय वाला किस्सा बयान किया गया है। सूरतुल बकरा के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्ताआत को जिक्र किया। ये बात याद रखें, मुक़त्ताआत ये क़त्उन से है। कता का माना होता है किसी चीज को काटना। कहते हैं ना, इस कागज को कता कर दो, यानी इस कागज को काटो। इस दीवार को, इस दरवाजे को कता करो, इस दरवाजे को काटो। अरबी जुबान में कतउन का माना है किसी चीज को काटना। तो ये जो हुरूफ हैं कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में, इनको भी अलग अलग पढ़ा जाता है, यानी काट काट कर पढ़ा जाता है, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन क़ाफ, ये जो हुरूफ हैं, इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। अब ये जो लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, इसको हमने अलग अलग हर्फ के साथ पढ़ना है। अलिफ लाम मीम, हमने इनको इकट्ठा नहीं पढ़ना, अलम नहीं पढ़ना, इसलिए अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्ताआत से इन सूरतों की इब्तिदा फरमाई। ये बात याद रखनी चाहिए, हुरूफ मुक़त्ताआत का माना अल्लाह ताला ही जानते हैं या अल्लाह ताला के बताने से अल्लाह के नबी भी जानते हैं। इसके अलावा हुरूफ मुक़त्ताआत का कोई माना नहीं जानता। फिर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा में मुख्तलिफ सूरतों में इस अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, इनको लाए हैं, तो इसकी वजह क्या है? अच्छी तरह जरा समझ लें। असल में कुरान करीम जिस जुबान में उतरा है अरबी जुबान है। अरबी जुबान बहुत ज्यादा फसीह और बलीग और आला दर्जा की जुबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला अलिफ लाम मीम कहकर खिताब फरमा रहे हैं कि देखो, कुरान करीम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये अल्लाह की किताब नहीं, ये इंसान भी बना सकते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, ए इंसानों, ये जो तुम अल्फाज बोलते हो वो इन्हीं अलिफ लाम मीम यानी हुरूफ से मुरक्कब हैं, हुरूफ से बने हुए हैं। हुरूफ से बने हुए अल्फाज तुम बोल सकते हो, तो ये भी मैं हुरूफ पेश कर रहा हूं। कुरान करीम को इन्हीं हुरूफ से बनाकर कुरान करीम जैसा कुरान लाओ, या कुरान करीम जैसे 10 सूरतें पेश करो, या कुरान करीम की कोई छोटी सी सूरत जैसी सूरत इन हुरूफ को देखकर बना लाओ, फिर हम देखें तो तुम कुरान करीम के को जो कह रहे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, फिर तुम इस बात में सच्चे हो। तो अल्लाह ताला की इसमें और हिकमतें भी बहुत सी हैं। मैं वो हिकमत अर्ज कर रहा हूं जो बिल्कुल आम फाहम है कि अल्लाह ताला ने इन हुरूफ को शुरू में इसलिए जिक्र किया ताकि इंसान ये देख ले कि ये हुरूफ तो वही हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूं अपनी जुबान में, लेकिन कुरान जैसी किताब बनाऊं इन हुरूफ को इस्तेमाल करके तो मैं इस पर कुदरत नहीं रखता। तो शुरू में अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम में इसका जिक्र फरमाया है। आगे अल्लाह ताला ने अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून में ईमान वालों की कुछ सिफात को बयान फरमाया।
5 सिफात अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जिक्र की हैं। नंबर 1, गैब पर ईमान रखना। गैब उस चीज को कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत है, तराजू है, पुल सिरात है, जन्नत की नेमतें हैं, जहन्नम के अजाब हैं। इनको हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर इत्माद करते हुए हम मानते हैं। इसको कहते हैं गैब पर ईमान लाना। नंबर 2, अहले ईमान की दूसरी सिफत है नमाज कायम करना। एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का माना कि नमाज को वक्त पर अदा करना, उसके फराइज का ख्याल रखना, आदाब का ख्याल रखना और पूरी तवज्जो के साथ इसको पढ़ा जाए, इसे नमाज कायम करना कहते हैं। नंबर 3, ज़कात अदा करना, सदके देना, अल्लाह की राह में खर्च करना। नंबर 4, कुरान करीम पर ईमान लाना और जो पहले आसमानी किताबें नाजिल हो चुकी हैं उन पर ईमान लाना। और नंबर 5, आखिरत पर यकीन रखना। ये अल्लाह ताला ने इब्तिदा में अहले ईमान की सिफत को बयान फरमाया है। आगे अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई है वो अच्छी तरह जरा समझें कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के कुछ औसाफ को जिक्र किया कि ये लोग मुनाफिक हैं। मुनाफिकीन के औसाफ को जिक्र किया। इंसान 3 किस्म के होते हैं, या तो पक्का मोमिन होगा, या पक्का काफिर होगा, या दरमियान वाला होगा यानी मुनाफिक होगा। इंसान को कामिल मोमिन होना चाहिए, कुफर से भी दूर रहना चाहिए और मुनाफिक होने से भी दूर रहना चाहिए। तो इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इन 12 सिफात को बयान फरमाया, और यह बयान करने का मकसद महज यही है कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम में भी कोई ये सिफत पाई जाती है तो हम उसको दूर करें। गोया कुरान करीम स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो शुरू में इंसान को पक्का मोमिन बनने की तरगीब दे रहा है और मुनाफिक और काफिर वाली सिफत से दूर होने की तलकीन कर रहा है। आइए देखते हैं वो कौन सी सिफात हैं जो मुनाफिकीन की है। नंबर 1, झूठ बोलना। नंबर 2, धोखा देना। नंबर 3, शऊर न रखना। नंबर 4, दिल की बीमारियों का वाला होना, हसद है, तकब्बुर है, हरीस होना है। नंबर 5, मक्कर और फरेब देना। नंबर 6, बेवकूफ होना। नंबर 7, अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ाना। नंबर 8, फितना और फसाद बर्पा करना। नंबर 9, जहालत वाला होना यानी जाहिल होना। नंबर 10, गुमराह होना। नंबर 11, तजब्जुब का शिकार होना, ये करूं ये ना करूं, इधर जाऊं इधर ना जाऊं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं डामाडोल जहन वाला होना। और नंबर 12, ईमान वालों से तमस्खुर करना, मजाक करना, ठट्ठेबाजी करना। ये मुनाफिकीन की सिफात हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुनाफिकीन की इन सिफात से महफूज रखे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया और इसी के साथ साथ फिर इब्लीस का भी जिक्र आया। सारी इंसानियत और इस दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक का किस्सा यही है। ये किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हक और इब्लीस के बातिल होने की तरफ इशारा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खैर और इब्लीस के शर की तरफ इशारा है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंसानियत के जद्द अमजद वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये इब्लीस और शैतान शुरू से दुश्मन है और ये क़यामत तक दुश्मनी करता रहेगा। इसलिए इब्तिदा में मुसलमानों को बताया जा रहा कि शैतान के रास्ते पर मत चलो, शैतान तुम्हारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था, तुम्हारा भी दुश्मन है। और ये दुश्मनी क्यों उसने की थी? इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जमीन में अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया था। जब जमीन में कोई खलीफा हो, अल्लाह के अहकामात को जमीन में नाफिज करने की बात करने वाला हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर शैतान ने मुखालफत करनी है। तो यहाँ इब्तिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर फरमाया। आगे तज़किरा है बनी इसराइल का और उन पर जो अल्लाह ने इनामात फरमाए हैं उनका। ये बात याद रखें
बनी इसराइल, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसराइल का माना अल्लाह का बेटा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपने जो अफराद थे, जो बेटे थे, उन बेटों को दीन की दावत दी और उन पर उनको चलाया है। आप हजरत इस इब्राहिम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब, और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, इनकी नस्ल में बहुत ज्यादा अंबिया आए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा है। एक पैगंबर बनु इस्माइल से हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम, और बाकी जो अंबिया थे वो बनी इसराइल से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों पर जो इनामात फरमाए हैं, उन इनामात का जिक्र फरमाया। एक तो इनामात जिक्र करके इन लोगों को बताना भी मकसद है कि तुम लोगों पर अल्लाह के इतने इनामात आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर मेहरबानियां की हैं और तुमने क्या किया। और ये तज़किरा करके हम मुसलमानों को भी और हर उस शख्स को बताना मकसूद है कि जिस पर अल्लाह ताला नेमतों की फरावानी करे, इनामात की फरावानी करे, तो उसको चाहिए कि वो फिर उनकी शुक्र भी अदा करे और अल्लाह ताला के अहकामात पर भी चले। तो बनी इसराइल का तज़किरा किया हमें दिखाने के लिए कि देखो इतने अफराद हैं, मैंने उन पर इतना एहसान किया, लेकिन उन्होंने इन एहसानात का बदला क्या दिया, शुक्र के बजाय नाशुक्री से काम लिया। तो यहाँ तज़किरा किया जा रहा है कि बनी इसराइल को जो अल्लाह ताला ने इनामात दिए हैं, उन इनामात में से 9 इनामात अहम हैं। जरा देखिए, अल्लाह ताला ने इनमें कसरत के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। एक कौल में है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में 10,000 अंबिया भेजे। नंबर 2, अल्लाह ताला ने दुनियावी खुशहाली बहुत ज्यादा दी थी। नंबर 3, अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत से भी नवाजा था। नंबर 4, फिरऔन ने इन लोगों को गुलाम बनाए रखा और एक अरसा तक फिरऔन इन पर हुकूमत करता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिरऔन की गुलामी से इनको निजात दी और उसके जुल्म और सितम से इनको बचाया। नंबर 5, फिरऔन की फौज और फिरऔन पीछे था और बनी इसराइल आगे थे, मिस्र से ये निकल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ते बना डाले। नंबर 6, फिरौन जो पीछे आ रहा था, अल्लाह ताला ने फिरौन को उस दरिया में गर्क कर दिया। ये जब आगे आ गए, नंबर 7, आगे एक मैदान था जिसको वादी सीना कहते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों के खाने पीने के लिए आसमान से फिर मन और सलवा उतारा। मन और सलवा हलवे की सी चीज थी और बटेर की तरह के परिंदे थे, ये अल्लाह ताला ने उतारे, बैठे बैठे इनको खाने पीने की अशिया मुहैया की। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, साए के लिए बादलों का इंतजाम फरमाया। नंबर 8, नंबर 9, पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पत्थर था, लाठी मारते थे तो चश्मे जारी हो जाते। चूंकि इनके 12 कबाइल थे तो हर कबीला एक एक कोने से पानी पी लेता था। अल्लाह ताला ने इन पर इनामात किए, लेकिन इन लोगों ने इनामात पर शुक्र करने के बजाय नाशुक्री की। और नाशुक्री के क्या मराहिल? नंबर 1, इन्होंने हक को छुपाया। अल्लाह ताला ने तौहीद की बात की थी, बनी इसराइल ने तौहीद को छुपा लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरा कोई बेटा नहीं, इन्होंने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। माशअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम जब इनके पास आए तो दूसरा इन्होंने नाशुक्रिये की कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया। नंबर 3, इन्होंने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी, बजाय इसके कि अल्लाह ने इन लोगों को गुलामी से निजात दी है। तो चाहिए ये था कि गुलामी से निजात की सूरत में रब का शुक्र करते, रब की इबादत करते, लेकिन ये लोग बछड़े की इबादत में मुब्तला हो गए। और नंबर 4, अल्लाह माफ फरमाए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, अल्लाह ताला ने इनमें अंबिया भेजे, इन लोगों ने नाहक अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। नंबर 5, अहद करते थे ये लोग, वादा करते लेकिन वादा तोड़ डालते। नंबर 6, अल्लाह तबारक व ताला का कलाम यानी तौरात जो उस वक्त बरहक था, इन्होंने उस तौरात में तब्दीली कर डाली।
तब्दीली कर डाली, लफ्जों को भी तब्दील कर दिया और उसके माने को भी तब्दील कर दिया। नंबर 7, इन लोगों में बोझ की बीमारी थी, हसद की बीमारी थी, किसी की नेमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंबर 8, ये दीन से और आखिरत से मोहब्बत करने के बजाय दुनिया के असबाब में मोहब्बत, जिस तरह आज भी हम बाज लोग हैं, मेरी बंगला, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरी फुलाश है, मेरी फुलाश है, दुनिया की मोहब्बत दिल में रच चुकी है, आखिरत की तरफ और दीन की तरफ तवज्जो नहीं है। नंबर 9, ये लोग अल्लाह ताला के करीबी और अल्लाह के मुकर्रब और अल्लाह ताला के महबूब फरिश्तों से भी दुश्मनी रखते थे और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को से इनकी अजीब व गरीब दुश्मनी थी। और नंबर 10, ये लोग इस गुमान में थे, इस दावे करते थे कि जन्नत में तो सिर्फ हम ही जाएंगे। यहूदी कहते हम जाएंगे और ईसाई कहते हम जाएंगे, यानी अमाल बड़े तबाहकुन, लेकिन इनका मामला यह कि हम जन्नत में जाएंगे। तो खैर, अल्लाह ताला जब नेमत अता फरमाता है और इतनी कसरत के साथ नेमतें दे तो उन नेमतों का शुक्र करना चाहिए। नाशुक्री करके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इंसान अपने आप को मग़ज़ूब और अल्लाह के गुस्से का सजावार न ठहराए। तो ये हमें दर्स दिया जा रहा है कि ए मुसलमानों, तुम भी इनको देख लो, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला ने कई नेमतें की हैं। मैं अपने शुरका से बात अर्ज करना चाहूंगा कि हम रात को तन्हा बैठकर अपने ऊपर अल्लाह की होने वाली नेमतों को देखें कि अल्लाह ने हमें कौन सी नेमतें दी हैं। जब नेमतों को हम देखेंगे, परखेंगे, फिर हमें अंदाजा होगा कि क्या हम उन नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं या अल्लाह माफ फरमाए हम उन नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। यह हमें भी परखना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने किस्सा जिक्र किया है बकरा यानी गाय वाला। मामला ऐसा हुआ कि बनी इसराइल कौम में एक शख्स कत्ल हो गया और उसका कातिल नहीं मिल रहा था। कातिल ऐसा चालाक था कि उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद लाश को उठाकर अपने दुश्मनों के डेरे पर डाल दिया और सुबह उठकर उसने जो है ना वो ऐलान शुरू कर दिया, वावेला शुरू कर दिया कि मेरे दुश्मनों ने हमारे शख्स को मार डाला है। था कौन? सगा भतीजा। उसने चाचे को, अपने चचा को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब इसको कत्ल कर दूंगा, इसकी जमीन भी मेरे पास आ जाएगी और इसका माल भी मेरे पास आ जाएगा और लोगों पर मैं इल्जाम लगाकर इसकी दियत हर्जाना भी लूंगा और उसकी बेटी से भी शादी कर लूंगा। अब पता नहीं चल रहा था, तो बनी इसराइली लोग उस वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और दरखास्त की कि आप अल्लाह से दुआ करें, हमें पता चल जाए कातिल कौन है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से अर्ज की तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तौर पर सवालात लोग करते गए तो मुख्तलिफ निशानियां बताई गई कि इस किस्म की गाय को ज़िबा करो और उसके जुबान का या उसकी दुम का टुकड़ा तुम लगा दो इस मकतूल को, तो ये मकतूल उठ बैठेगा और उठ बैठने के बाद ये अपने कातिल का नाम बता देगा, अपने कातिल का नाम बता देगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उन्होंने बात शुरू की तो उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद मकतूल को उसका टुकड़ा लगाया तो वो अल्लाह के हुक्म से उठ बैठा और उसने बता दिया कि मेरा कातिल मेरा भतीजा है। चुनाचे पता चल गया। और अब देखिए, एक बात यहां समझिए कि अल्लाह ताला ने इस वाकया में जिक्र किया है कि गाय ज़िबा करो। इसकी वजह क्या है? इसकी कई हिकमतें हैं। पहली हिकमत इसकी ये कि इससे पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। दूसरी चीज कि यहूदियों में एक ऐसा गिरोह, इन्हीं बनी इसराइलियों में एक ऐसा गिरोह था जो इस बात का इनकार करता था कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि वाकयातन बंदा मर चुका है, मरने के बाद जिंदा हुआ, उनका अकीदा दुरुस्त हो गया। और तीसरी कि इन लोगों में मोहब्बत थी बछड़े की, बछड़े की बड़ी मोहब्बत थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों से गाय को ज़िबा करवाकर उन पर यह बात वाजे कर दी कि ये खुदा नहीं है, इसको तो तुम खुद अपने हाथों से ज़िबा कर सकते हो। तो खैर,
गाय के ज़िबा करने में ये हिकमतें थी। आगे अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत दो फरिश्तों का किस्सा जिक्र फरमाया है। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा, एक मकाम है बाबिल, बाबिल में भेजा, और भेजने की वजह और मकसद ये था कि वहां के लोग कुफ्र कर रहे थे जादू कर करके, और बाज लोग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो वही उतरती है, उनके जो मुजजात होते उनमें फर्क नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को भेजा, उन्होंने लोगों को जादू सिखाया और ये कहकर सिखाया कि ये इसलिए सीख लो ताकि तुम्हें पता चले कि जादू क्या चीज है और वही इलाही क्या चीज है, दोनों में फर्क किया जा सके। तो हारूत और मारूत का तस्करा हो गया। आगे अल्लाह ताला ने यहूदियों की एक बहुत बुरी साजिश को आश्कार फरमाया कि यहूदियों में यह बुरी साजिश है जो नबी के साथ वो करते हैं, और साथ साथ मुसलमानों को एक अहम काम की तालीम भी दी। किस्सा यूं हुआ कि मदीना मुनव्वरा में यहूदी आबाद हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में आते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते राइना 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 कहते। उनकी इब्रानी जुबान में ये लफ्ज था। अब अरबी में राइना कहा जाए तो इसका माना है कि हमारी रियायत करें, हमारी रियायत करें, यानी हमें भी कोई बात बता दें, आप जो बात बयान फरमा रहे दोबारा फरमा दें, राइना। लेकिन वो उसको अपनी जुबान में थोड़ा सा खींच कर यूं पढ़ते राइना राइना, ये गाली शुमार होती थी, यानी हमारे चरवाहे माजल्ला सुमा माजल्ला। तो उन लोगों ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज कहे। अब बज़ाहिर उनका मसला ये था कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी तवज्जो कीजिए, तो उनको देखा देखी कुछ मुसलमान भी ये कहने लगे। मुसलमानों के जहन में माजल्ला गलत कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन चूंकि इसका माना ऐसा बनता था कि अगर इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें तो इब्रानी जुबान में ये गाली थी, तो अल्लाह ताला ने रोक दिया कि ए मुसलमानों, तुम राइना मत कहा करो, जब हुजूर की महफिल में जाओ तो तुम ये कहा करो उन्जुरना या रसूल अल्लाह, हम पर शफकत फरमाएं और इस बात को दोबारा कह दें, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, ये बात हमें समझा दें। तो इन आयात में फिर अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम, इन आयात में अल्लाह ताला ने फिर यहूद की इस शरारत को आश्कारा किया और मुसलमानों को तालीम अता फरमाई। आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमने इम्तिहान लिया और उनको इम्तिहान में साबित कदम पाया। इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब गुजरे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात क्या हैं? जिस घर में है वाले साहब बुत बनाते हैं तो वालिद से बेजारी का इम्तिहान, फिर दूसरा इम्तिहान कि आपकी कौम ने आपसे मुकाबला किया, तीसरा इम्तिहान नमरूद जो वक्त का बादशाह था उसने आपसे मुनाजरा करने की बात की और मुनाजरा किया उसने। नंबर 4, आपने अकीदे तौहीद बयान किया तो उसकी पादाश में आपको आग में डाला गया, अल्लाह के फजल से आप बच गए। नंबर 5, आपको अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। नंबर 6, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हुआ कि ऐ इब्राहीम, आप मक्का मुकरमा में जहां पर उस वक्त कुछ भी नहीं था, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को छोड़ के चले जाए। और नंबर 7, जब बच्चा बड़ा हुआ अल्लाह ताला ने फरमाया कि बच्चे को हमारी राह में कुर्बान करो। ये इम्तिहानात थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने लिए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन इम्तिहानात में कामयाब हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, 3 चीजें दुआ में मांगी। नंबर 1, ए अल्लाह, मक्का के शहर को अमन का गहवारा बना। नंबर 2, ए अल्लाह, यहां पर फल नहीं है, इस मक्का में फलों के अंबार लग जाए। और आप आज भी देखें, अल्लाह ताला जिनको हज या उम्रा की तौफीक अता फरमाए, आप मक्का में जाएं, आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी और मुल्क में शायद वो फल ना मिले, लेकिन आपको मक्का में वो फल मिल जाएगा। ये अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और तीसरी चीज, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, इन लोगों में एक ऐसा नबी भेज
جس میں یہ چند صفات ہوں تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر حکم دیا گیا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور وہ ملت ایسی ہے جس کی تکمیل ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی یعنی اسی دین اسلام کی دعوت دیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. آخر میں آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کامیابی کی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اسی طرح لائے جس طرح ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین لائے. صحابہ جیسا ایمان ہمارا ایمان ہوگا تو کامیاب ہیں، اور اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر کوئی ایمان کی بات کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا. پارہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کے بالکل ابتدا میں فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. آپ کا دل یہ تھا کہ چونکہ مجھے ملت ابراہیمی کا حکم دیا گیا ہے اس لیے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اے پیغمبر اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا. اس وقت یہود نے اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، قبلہ کبھی اس طرف اور قبلہ کبھی اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ دیکھو تمام جہات مشرق ہو مغرب ہو میری ہیں، میری پیدا کرتا ہے، میں جس طرف بھی نماز پڑھنے کا رخ دوں تم کون ہوتے ہو. اس پر اعتراض کرنے والے تو دوسرے پارے کے بالکل شروع میں یہودیوں کے بے بنیاد اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے. آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اللہ کے نبی کو بھیجنے کے کئی اہم مقاصد ہیں. ان میں سے 4 بنیادی مقصد ہیں اور ہم میں سے ہر بندہ یہ بات دیکھ لے کہ ہم ان مقصد کو کتنا کر رہے ہیں. نمبر 1 تلاوت آیات، قرآن کریم کو پڑھنا. نمبر 2 تزکیہ نفوس، دلوں کو پاک کرنا. نمبر 3 کتاب اللہ کی تعلیم یعنی قرآن مجید کو سمجھانا، یہ نبی کا منصب ہے. نمبر 4 حکمت کی تعلیم یعنی حکمت دانائی ان کی تعلیم دینا اور سنت کی تعلیم دینا. ہم میں بھی ہر شخص تلاوت کو اپنا حرز جان بنائے، اپنے دلوں کو پاک کرے. ہم قرآن پڑھیں بھی صحیح اور قرآن پڑھائیں بھی صحیح، علم و حکمت کی بات بھی کریں اور حضور علیہ السلام کی سنت کی تعلیم بھی عام کریں. تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم اللہ کے نبی جن کاموں کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہم ان کاموں پر عمل پیرا ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. آگے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ. دیکھیے 2 باتیں یہاں سمجھیں. پہلی بات یہ آپ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مکہ مکرمہ بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے. آپ جب بیت اللہ میں جائیں گے تو بیت اللہ سے تھوڑا سا باہر کی طرف یعنی کعبہ سے تھوڑا سا اس طرف آئیں تو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. حج کرنے والے حاجی صاحبان یا عمرہ کرنے والے معتمرین ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں سائی کرنا. ابتدا میں ایسے تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے سے پہلے کہ وہاں لوگوں نے 2 بت رکھے تھے صفا اور مروہ پر، اور بعد میں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان بتوں کو ہٹوا دیا. اب جو لوگ وہاں
साई करते थे, तो उनके दिल में एक मसला था कि यहां तो बुत रखे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें गुनाह मिले कि तुमने उन जगहों पर साई शुरू कर दी है, दौड़ना शुरू कर दिया है जहां बुत थे। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा, कि तुम यहां चक्कर लगाओ, साई करो, इसमें गुनाह नहीं है। तो यहां जिक्र किया कि सफा और मरवा ये इस्लाम की निशानियां हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम की किताब है हज और उमरा। अगर किसी का इरादा हज और उमरा का हो तो उस किताब को जरूर पढ़ें। सफा और मरवा की जो बात आई है तो मैं उस किताब का भी तज़किरा कर रहा हूँ, हज उमरा का भी मुताला किया जाए, इससे हज और उमरा के मसाइल आपके सामने वाज़े होंगे। आगे इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर, आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बाज मुशरिक ऐसा करते थे कि वो लोग कुछ चीजों को खुद हलाल करते, कुछ को खुद हराम करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, हलाल वही होगी जिसको अल्लाह हलाल करेंगे, हराम वही होगी जिसको अल्लाह हराम फरमाएंगे। तो मुशरिकीन इन चार चीजों के बारे में कहते थे कि ये हलाल है। मुर्दार हलाल कहते थे, अच्छा खून बहने वाला खून हलाल समझते थे, सूअर और खिंजीर को हलाल समझते थे, और अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कोई चीज दी जाए उसको वो हलाल समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, ये चारों की चारों चीजें जिनको तुम हलाल समझते हो ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल ये चीजें हराम है। आगे तज़किरा आया है किसास का। ये बात याद रखें, किसास क्या होता है। अगर किसी बंदे ने किसी और बंदे को कत्ल कर दिया तो जिसको कत्ल किया है उसको अब कत्ल किया जाएगा। जिस बंदे को कत्ल किया गया मकतूल, उसके वारिस अगर उठ खड़े हों कि हमारे इस बंदे को इस बंदे ने कत्ल किया, इसको कत्ल किया जाए, तो हुकूमत इस्लामी या जो हुकूमत वक्त की हो उस कत्ल के बदले में इस कातिल को मारेगी, कत्ल करेगी। कातिल को मारना इसको कहते हैं किसास। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलकुम फिल किसास हयात, ए अक्लमंदो किसास लिया करोगे तो तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी है। जरा इसको समझे, जिंदगी कैसे है। एक बंदे को पता है कि जब अगर मैं कत्ल करूंगा तो उसकी पादाश में मुझे भी कत्ल करेंगे, तो अब वो कत्ल से पीछे हट जाएगा, अब वो कत्ल नहीं करेगा। तो इसमें जिंदगी है, कत्ल करने वाला भी बच जाएगा और लोग कत्ल भी नहीं होंगे। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत, आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला ने वसीयत का जिक्र किया है। याद रखें, वसीयत का जिक्र 3 स्टेप में बयान हुआ है। शुरू में ऐसा होता था कि जब कोई फौत हो जाता तो उसके जो वरसा होता, उसका जो तरका और माल होता, सिर्फ बेटे लेते, बीवी भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, बेटियां भी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा में फरमाया कि नहीं, जब कोई फौत होने लगे तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के लिए वसीयत करके जाए कि फलां को इतना हिस्सा, फलां को इतना हिस्सा, फलां को इतना हिस्सा। बाद में सूरत निसा की जब आयात नाजिल हुई, वहां जिक्र किया गया कि फलां रिश्तेदार का इतना हिस्सा है, फलां का इतना है, फलां का इतना है। ये मुस्तकिल इल्म है जिसे इल्म विरासत कहते हैं, इल्म मिरास कहते हैं। तो इन आयात में बरल जो जिक्र है वो ये है कि रिश्तेदारों को भी वसीयत करो, लेकिन सूरत निसा में जब हिस्से मुतय्यन कर दिए, अब वारिस लोगों के लिए वसीयत ना करें। हाँ, किसी और के लिए बंदा वसीयत कर सकता है, और ये बात याद रखी जाए कि वसीयत 1/3 में होगी, 1/3 में होगी। मसलन एक बंदा फौत होने लगा है, वो कर दे वसीयत कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है इसमें से 10 मरले का जो प्लाट है वो एक मदरसे में दे देना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरी जो रकम है उसमें से 1 लाख रुपए फला मस्जिद को दे देना, फला मौलाना साहब को दे देना, फला जो गरीब आदमी है उसको दे देना। तो आज भी वसीयत कोई करना चाहे तो कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। इससे मरने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाएगा। रोजा की फर्जियत, कुतिबा अलैकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने रोजे के अहकाम बयान फरमाए। इंशाअल्लाह 2.5 माह बाद रमजान शरीफ भी आ रहा है, तो रोजे के भी तज़किरा है। यह रोजा अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों पर भी फर्ज किया था,
اور हमारी इस उम्मत पर भी फर्ज किया है। रोजा नियत के साथ सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक न इंसान खाए, न पिए, न खामद बीवी मिले, इसका नाम रोजा है। रोजे की सबसे बड़ी फजीलत, हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। रोजे की कई हिकमतें हैं। एक हिकमत यह है कि एक महीने में अगर कोई शख्स हलाल चीजों को खाने से बचा रहेगा तो उसमें ये प्रैक्टिस पैदा हो जाएगी कि वो हराम चीजों के खाने से भी बच जाएगा। और इससे इंसान जब भूख प्यास बर्दाश्त करता है तो उसको पता चलता है कि भूखों पर क्या गुजरती है, प्यासों पर क्या गुजरती है, जिसको खाने और पीने को कुछ नहीं मिलता। तो इससे हमदर्दी का एक जज्बा भी पैदा होता है। बहुत से फवायद हैं, लेकिन अहम फायदा कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मान रहे हैं। आगे माह रमजान की फजीलत को बयान फरमाया। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, सूरत के आयत नंबर है 185 में। रमजान की फजीलत यह है कि इसमें रोजे फर्ज किए गए और इस महीना में कुरान शरीफ नाजिल किया गया। और एक और अहम फजीलत यह है कि हम इसमें 20 रकअत तरावी पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हैं। आगे अल्लाह ताला ने व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी शफकत को और मोहब्बत को बयान फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि देखो तुम पर मैंने रोजे फर्ज किए, फिर आगे इतिकाफ का जिक्र, इतिकाफ तुम पर मैंने रखा है। तो अगर इतिकाफ है, रोजे हैं और मेरे अहकाम मानने में तुम्हें मशक्कत होती है तो मशक्कत को महसूस न करो, कोई मसला नहीं। क्यों? फ़इन्नी क़रीब, मुसलमानों मैं तुम्हारे करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कोई मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, मैं करीब हूं। तो याद रखिए, मोमिन अल्लाह ताला के जितना करीब होगा वो इबादत से होगा। हमें भी इबादत करनी चाहिए। इबादत करके रब ताला के करीब जब हम होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व ताला फिर जरूर बिल जरूर हमारी बात, हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी मुश्किलात को दूर करेगा, आसानियां पैदा फरमाएगा। आगे इरशाद फरमाया व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाह, इतिकाफ का जिक्र है। चूंकि रोजों का तज़किरा आया, रमजान का जिक्र आया, तो इतिकाफ का भी जिक्र है। याद रखें, मर्द मस्जिद में इतिकाफ बैठें और खवातीन अपने घरों में इतिकाफ बैठेंगी। इतिकाफ में 10 दिन मस्जिद में बैठा जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है, खुदा को राजी किया जाता है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आयत नंबर 189 में अल्लाह ताला ने चांद का जिक्र किया। देखिए चांद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक तो ये नेमत है कि रात को निकलता है तो हमें रोशनी मुयस्सर होती है, हमारे फलों में रस पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इबादत भी चांद से रिलेटेड है, हमारे मामलात भी चांद से रिलेटेड है, हमारे मुआहदात रिलेटेड है। आप देखिए ना, औरत का खामन फौत हो जाता है, इद्दत गुजारे किस तरह? अब चांद को देखकर, यानी इस्लामिक डेट के मुताबिक। हमने हज करना है, जुल हज में जाएं, चांद को देखा। आपने रोजा रखना है, चांद देखेंगे, रोजा स्टार्ट करें। आपने ईदें करनी है, चांद देखें तो आप ईद करें। तो चांद के साथ हमारे दीनी इबादत, मामलात, मुआहदे इसके साथ रिलेटेड हैं, इसलिए चांद का बहुत बड़ा फायदा है। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया। जिहाद और क़िताल का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। जिहाद का मकसद यह है कि हम अल्लाह ताला के कलमा यानी इस्लाम को बुलंद करें, इसलिए जिहाद की बहुत बड़ी फजीलत है और यह मुक़द्दस अमल है। हज का बयान है आयत नंबर 197 पर। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज इस्लाम के 5 रुकन में से एक बहुत बड़ा रुकन है। जो शख्स अपने घर से लेकर मक्का जाने तक और वहां से वापसी तक के किराए का और खर्चे का उसके पास बंदोबस्त हो और वापस आने तक अपने घर वालों, बीवी, बच्चों का खर्च उसके पास हो, तो उस पर हज फर्ज होता है। हज में चंद चीजें हैं। हज के 2 रुकन हैं, 3 रुकन हैं। नियत यानी इहराम बांधना, वकूफ अरफा और तवाफ ज़ियारत। हज 5 दिनों में होता है, 8 जुलहज से लेकर 12 जुलहज तक। 5 मकामात ऐसे हैं जहां पर हज होता है। हज के जो प्लेसेस हैं वो 5 हैं: बैतुल्ला, सफा और मरवा, मिना, मुजदलिफा का मैदान, अरफात का मैदान। हज में जो इबादत हैं वो 7 हैं। नंबर 1 इहराम बांधना, बैतुल्ला का तवाफ करना, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना, अरफा में वकूफ करना,
कंकर मारना, कुर्बानी करना और सर के बाल मुड़वाना या सर के बाल छोटे करवाना, ये हज है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिनको फुर्सत दी है वो जरूर हज करें जिन पर हज फर्ज है। आगे अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा किया है जो मुर्तद हो चुके हैं। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। आयत नंबर 217 में अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया है जो अपने दीन से फिर जाए, ईमान से फिरकर कुफ्र में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला उस दिन के आने से पहले मौत दे दे जिस दिन कोई मुसलमान मुर्तद होकर किसी काफिर दीन में चला जाए। जो बंदा अपने दीन को छोड़ बैठता है उसके लिए 3 हुक्म हैं। नंबर 1, उसके तमाम अमाल खत्म हो जाते हैं। नमाजें पढ़ी थी खत्म, रोजे रखे खत्म, उसने सदके किए थे खत्म, हज किया था खत्म, उमरा खत्म। नंबर 2, उसको हुकूमत कत्ल कर देगी। नंबर 3, आखिरत में अजाब यह है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। कुछ अल्लाह ताला ने देखे अहकाम जिंदगी बताए। इंसान है, जानवर नहीं है। इंसान है तो इंसान को इंसानियत सिखाई है। दुनिया में रहना है, मुआशरे में रहना है तो आपने कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से काम नहीं करने। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में कुछ अहकाम भी बयान फरमाए। एक हुक्म यह बयान फरमाया कि औरत अगर अय्याम में है तो अय्याम में औरत के पास जाना हराम है, हम बिस्तरी करना हराम है, नाजायज है। हाँ, जब अय्याम से फारिग हो जाए उसके बाद खावंद बीवी मिल सकते हैं, इससे पहले नहीं। बाकी अगर अय्याम में कोई औरत है उसके हाथ से खाना पीना बिल्कुल दुरुस्त है, उसके साथ बैठना बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम ने वो तालीम दी है जो इत्तेदाल और दरमियानी तालीम है। ऐसा भी नहीं किया कि इन अय्याम में औरत को बिल्कुल दूर कर दो और ऐसा भी नहीं किया कि इन अय्याम में बहुत ज्यादा करीब हो जाओ, बल्कि फासला रखा है और औरत को घर से बिल्कुल दूर करने की बात नहीं की। इस्लाम का बहुत ज्यादा रोशन बाब है। आगे अल्लाह ताला ने तलाक के कुछ मसाइल को बयान फरमाया। अत्तलाक मर्रतान। देखिए, तलाक के बारे में तफसीली गुफ्तगू तो हमारी जो कोर्स चल रहा है इल्म दीन कोर्स, उसमें आपको मिल जाएगी। यहां सिर्फ 2 अहम बातें समझे। पहली बात, अगर कोई खामद बीवी को 1 तलाक दे तो 1 होगी, 2 दे दे तो 2 होंगी, और अगर इकट्ठी 3 तलाकें दे या एक कलमा के साथ दे, यानी खामद ने कहा तुझे 3 तलाक तो तीनों पड़ गई, या खामद ने कहा तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तो भी तीनों पड़ गई। ये इंतहाई अहम मसला है। लोग इस मसला से बेखबर हैं, गलत सलत फतवे और राय पेश करके एक हराम चीज को हलाल करने की कोशिश करते हैं। इससे बहुत ज्यादा बचना चाहिए। उस्ताद मोहतरम का इस पर मुस्तकिल बयान भी है, मुस्तकिल नोट्स भी हैं कि 3 तलाक 3 ही हैं, 3 तलाक 1 कहना ये जो है वो अहले इस्लाम का शेवा नहीं है, इससे बचना चाहिए। आगे रजात का मसला है। अल्लाह ताला ने वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, आयत नंबर 223 में दूध पिलाने का मसला बयान किया। देखें कितना पाकीज़ा मसलक इस्लाम है, कितना पाकीज़ा दीन है। बच्चे की सेहत को मलहूज रखते हुए वालिदैन को कुरान में हुक्म है कि आपने बच्चे को दूध पिलाना है। आज हमारी साइंस भी इस बात को साबित करती है कि आप डब्बे का दूध बच्चे के पिलाएं और एक माँ का दूध बच्चा पीता है तो माँ के दूध में जो ताकत मुयस्सर है वो डब्बे के दूध में या किसी और दूध में नहीं है। इस्लाम ने इसका बहुत ज्यादा ख्याल फरमाया। तो माओ को चाहिए कि बच्चों को दूध पिलाएं और दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 साल दूध पिलाएं। आगे मसला है इद्दत का। देखिए, अगर किसी औरत को तलाक हो जाए, कोई औरत खुला ले ले, किसी औरत का खामद फौत हो जाए तो उस औरत पर इद्दत लाजिम है। इद्दत किसे कहते हैं? चंद पाबंदियों के साथ औरत अपने घर में रहे, बाहर ना जाए, इसको इद्दत कहते हैं। मैं इख्तिसार के साथ यहां अर्ज करना चाहूंगा कि कौन सी औरत कितनी इद्दत गुजारे। अगर किसी औरत की सिर्फ औरत का निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई, खामद ने तलाक दे दी है, इस पर इद्दत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक औरत की रुखसती हो गई थी, खामद के पास भी चली गई है, अब खामद ने तलाक दे दी है, तो अब
देखा जाएगा अगर उसको अयाम आते हैं तो 3 वो हैज की पीरियड्स गुजारेगी, और अगर अयाम नहीं आते, 5 औरतें बाज होती हैं अयाम नहीं आते, तो वो 3 महीने गुजारेगी। और तीसरी चीज, अगर खामद फौत हो चुका हो तो फौत होने वाले खामद की जो बेवा होगी उसने 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारनी है। इद्दत के 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, ये जो दूसरा और तीसरा स्टेप मैंने अर्ज किया, अगर औरत उन सूरतों में प्रेगनेंसी के साथ है और खामद ने तलाक दे दिया, फौत हो चुका है, अब जो ही बच्चा पैदा होगा इसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। तो ये 3 किस्म की खवातीन होती हैं, इनकी इद्दत का ये मसला है। एक बात अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा दरमियान में बयान फरमाई, वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितबतिन निसा औ अकननतुम फी अनफुसिकुम। औरत अगर इद्दत में बैठी है ना, ये बात याद रखने के काबिल है और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक औरत इद्दत में है, इद्दत वाली औरत के पास पैगाम निकाह कोई मर्द न भेजे। ये बात याद क्यों? इसलिए कि वो अभी दुख में है या वो इद्दत की पाबंदियों में है। पैगाम भेजकर अपनी तरफ माइल करना, अपनी तरफ रागिब करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, अगर कोई इस तरह बात सराहतन ना करे बल्कि इशारों में बात कर दे, मसलन एक बंदा है, खातून इद्दत में बैठी है, तो वो ये बात करे कि मेरी बीवी फौत हो गई है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कोई अच्छी और सालेह औरत दे जो दीनदार हो, बच्चों मेरे बच्चों की खिदमत करे, मेरे बच्चों को संभाले, और वो औरत इससे समझ जाए कि हजरत साहब का इरादा क्या है, तो इशारों के राय में तो बात कर सकते हैं, लेकिन सराहतन बात करना जायज बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत ज्यादा इंसान को ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल आखिर में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है हजरत तालूत के उस लश्कर का कि जिस लश्कर ने एक मुखालिफ फौज जालूत के साथ जो है वो जिहाद किया था। क्योंकि पीछे तज़किरा था जिहाद का, इसलिए अल्लाह ताला ने यहां पर तज़किरा फरमाया है, यहां पर जिक्र किया है। बनी इसराइल और हजरत तालूत का तज़किरा है। जिहादी सिफात से माला माल एक लश्कर था, उसने अपने से डबल लश्कर को शिकस्त दे दी थी। यानी एक तरफ हो 1000, मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं, दूसरी तरफ से 2000 हैं, तो 1000 ने 2000 को शिकस्त दे दी। इससे हमें क्या बात समझ आती है? हमें बात यह समझ आती है कि इंसान ये ना देखें कि हम कम हैं, हम कमजोर हैं। नहीं, अगर हमारे असबाब ने, हमारे तीर कमान ने, हमारी तोपों ने लड़ना है तो फिर तो हम असबाब को देखें, अपने आप को असलहा से, ट्रेनिंग से इंसान लैस करे, फिर उसके बाद दुश्मन से लड़े तो अल्लाह मदद फरमाते हैं। कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कई जमातें होंगी जो ताकतवर होंगी, तो उनसे कमजोर जमातें अल्लाह ताला के हुक्म से कामयाब हो जाती हैं। तो हमें भी ये बात यहां याद रखनी चाहिए कि मुसलमान कामिल तौर पर कामयाब उस वक्त होगा जब उसका भरोसा अल्लाह पर होगा। अगर हम असबाब पर भरोसा करके बैठते रहे ना, एक आदमी मालदार है, अचानक ही उसकी फैक्ट्री खत्म हो गई, अब बताइए माल किधर गया? लेकिन जिसकी नजर माल पर ना हो बल्कि माल के रब पर हो, तो वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होगा। 2 पारों का खुलासा आपकी खिदमत में पेश हो चुका। आज के हमारे इस 2 पारों के खुलासा में जो हमें चीजें बतौर नसीहत के मिलती हैं, नंबर 1 मैं आपकी खिदमत में स्टेप वाइज अर्ज करता हूं। नंबर 1, हम कामिल मुसलमान बने, मुसलमान की जो सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई है उन पर अमल पैरा हूं। नंबर 2, हम मुनाफिकीन की जो सिफात बयान हुई है, तकरीबन 12 सिफात, हम देखें कि हमारे अंदर हैं तो हम उनको दूर करने की कोशिश करें। नंबर 3, हम इस बात को अज़म करें और हम इस बात का पक्का इरादा करें कि हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने जिन मकासद के लिए भेजा था, कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम पढ़ना, दिलों को पाक करना और हिकमत और सुन्नत की तालीम, हम उन पर कितना अमल पैरा है। नंबर 4, दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल करने की कोशिश करें, मसलन वसीयत लिख नहीं हो, वसीयत लिख कर जाए। इसी तरह कत्ल, इनसे दूर रहे,
بچوں کے معاملات ہیں، بچوں کے معاملات میں ان کا خیال رکھیں، یعنی دوسروں کا خیال بہت رکھنا۔ اور پانچویں اور آخری بات وہ یہ کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اسباب تو جمع کر لیں کہ اس کے لیے یہ چیز ضرورت ہے، لیکن ہماری جو اصل نظر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ ہمارے آج کے اس درس میں یہ اہم پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔